am starting today public sector in India. So it's a very common word you generally hear about. Okay, we have a two sector called government sector and private sector. So it is said as public sector versus private sector. So after getting independence, Indian, all the think tank and all planners of Indian government, they just laid out that sort of model which was more based on public sector, and there was a reason behind it. Because there are so many things a young nation has to do to lay down infrastructure, to keep the priority area, uh, to just make focus on the all the most required things. So these things cannot be expected from private sector because the main motive of private sector is to earn profit. Okay, and for that matter, private sector spend money or its capital into those areas where they have a more expectation of profit. Otherwise, they will not go for making investment. That is why, after independence, we started our planning process. The public sector was given more emphasis because at that time there were no private sector like today's private sector like Ambani, Adani, Tata, Birla, and all. We have some business houses, but they were not so potent who can make a large investment in infrastructure, in core industry, in a strategic area. A strategic area means defense sector, because defense is called to be the most priority sector for any the government. So for that matter, the question arises: why public sector? Why public sector? So we have there is many debate when you study the subject of public enterprise. So first it is being taught that why public sector? What are the reasons to give emphasis over public sector and invest money and make provision for all kind of public sector activity? So generally it is being told the day-to-day necessities of mankind, like provide food, like provide clothes, like provide all kind of household needs. It is not the duty of government to provide. Government duty is only to facilitate them so that they can earn more income, they can have employment, they can have all kind of infrastructure. So public sector is needed for that. But during 1950, our planners and our government just started laying out a public sector in most of the areas. Like you can say the basic and core industry, in infrastructure, in day-to-day public utility services. Even we have a company like Modern Foods, which was used to make bread and all. Even we have so many hotels under the control of Government of India and also the state under state government. So it was later told that it is not duty of running hotels on behalf of government. Government's main duty is to protect from outer aggression and from inner trouble. That is the first duty. And second duty to just create infrastructure so that it can have a more base for generating newer and newer industry on behalf of private sector or any individual sector. So there are 9 and 10 points why public sector. The first point is, you can note it down, model entrepreneur. Model entrepreneur. As you know, entrepreneur is one of the basic requirements of any economy. America is famous for the big entrepreneurs. They can take risk, they can invest capital, and they can have a very big goal for their society and for the nation. But in a poor country or in a just liberated country, there is no such environment. So government has to come across and they have to come forward
and just act as the role of model entrepreneurs. The government will become entrepreneur, public will become entrepreneur later. So this is the one of the reason why public sector is needed. The first is the model entrepreneur, and government of India did that. It established so many heavy industry, so many river valley project, so many capital good industry, so many steel, coal, iron, all kind of metals, airports, power company, like that. The second reason is the infrastructure development. We have already discussed about this. The infrastructure is required for any society, it is required for the faster economic development and like that. So you can note it down. The second reason is infrastructure development. And third is the balanced regional development. Because in the world, some countries are large, some are small, some are medium size. But India is a large country, not territorially, not very large, but population wise very large, topography wise very diversified. So in that manner, a authority is required who can have a goal for balanced regional development. Because there are so many different and challenged areas found to be in any country, like we have some deserts, like we have a drought prone zone, like we have a very flood prone zone, like we have a very barren land, like have a very tribal and Naxalite problem or kind of terrain. So in that manner, only government kind of authority can plan to just have a balanced regional development depending upon the requirement and depending upon the availability of natural resources in the respective area. मैंने जहां पर जो नेचुरल रिसोर्स है उसी के हिसाब से इंडस्ट्री लगाया जाए. So that objective is very much fulfilled by this public sector, and that is the balanced regional development. This is point number 3. Now the point number 4, for the strategic and core sector development means defense, steel, energy. So we already know that some industry are required for the benefit of other industry. That is called in economics term B2B, business to business. एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, कि कोई इंडस्ट्री बनता है उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करता है, और कोई इंडस्ट्री ऐसा है जिसका कि कोई दूसरा यूज करता है, जैसे इनोवेट ट्रैक्टर इज B2B. तो इस टाइप का काफी सारी चीजें हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को फायदा होता है. कई सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स होते हैं, तो डेट इज रिक्वायर्ड. एंड पॉइंट नंबर 5, for the priority sector of economy, or the public sector is required for the priority sector. Suppose कि food is required, तो we need several science and विज्ञान केंद्र, river valley project. We have a very high yield variety seeds farm, fertilizer plant. So these are the priority which has to be established not only by private sector, that is established only by the government, because this is the priority area where we can't expect private sector come and just invest their capital. 7th point is for nurturing and making sane utilization of natural resource. It is also one of the very important point for the proper utilization of the natural resource, because what we say, and it is already in our public domain, in a state like Odisha and Jharkhand, some mines were given on the lease, and the private player or even some multinational player, they just misutilized all the natural resources, and there was heavy mining, and without following the proper guidelines, they just mined their project and they just misutilized it. So that that objective is never fulfilled by inviting private player or foreign player. So that must be done by the public sector or the government sector. So this is the point number 7. For utilizing proper utilization of the natural resources. Sir. The next, yes, tell me. Sir, 6th point. 6th point. 6 number point, sir, क्या था?
वन क्या था इसका? नहीं, Sixth. अच्छा 6 वन। देखो पहला था मॉडल एंटरप्रेन्योर, सेकंड था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, फोर्थ था फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड कोर सेक्टर। स्ट्रेटेजिक मींस डिफेंस एंड द कोर सेक्टर जो कि जरूरी है, लोहा इस्पात कोयला वगैरह। पांचवा था फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो प्रायोरिटी है नेचुरली फूड पहले प्रायोरिटी था, आज भी प्रायोरिटी आईटी है या व्हाटएवर जो भी है। और सिक्स जो है फॉर नर्चरिंग एंड मेकिंग सेम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ये सिक्स है नॉट सेवन। एंड सेवेंथ है फॉर जनरेटिंग, जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फॉर जनरेटिंग substantial employment and providing welfare to the public। ठीक है ना? तो employment generation is also one of the main objective. What we see, the private player only create employment when they have a demand for their product. Otherwise, they won't go for hiring people. But government is just following some guideline. There are some sanctioned posts for all department and enterprises. So they just follow the suit. Nowadays, it is not happening in that way. What we was occurring in the past years or during 60s, 70s or 80s. So for generating employment and providing welfare to the public. And the ninth point is for fulfilling the objective of social justice. It is also one of the points. Because social justice, which is generally being done through policy of reservation, it is implemented in only government sector. It is not implemented in the private sector. So this is also one of the objective of making public sector or promoting public sector. Yeah. Now I come to the some basic and classical some information regarding public sector. So what are the types of public sector? So in my previous classes, I talked about what are the types of public sector. Then I told, tell me what are the area which is directly run or controlled by ministry. So we all get to know that it is railway, post and telegraph like that. So the first classification of public sector is ministerial enterprise. You can note it down. मिनिस्ट्रियल एंटरप्राइज, जिसको कि डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। द सेकंड इज डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, जिसमें कि पोस्ट जो है डिपार्टमेंट है, दैट इज नॉट मिनिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। ओके, earlier we have a telegraph also, but now telegraph has been stopped. There is no telegraph services right now. And the third classification is called public corporation. ये अगर आप if you are the student of commerce, so you have to study business organization. So in business organization subject, you are taught what kind of companies are being established and how they get formed like that. So third जो classification है, it is called public corporation. So normally the public corporation are being framed with the order also, with the office order also, but later it has to be approved by parliament. Parliament में इसको approve करना पड़ता है कि public corporation। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं that is governed through parliament, और कुछ चीजें जो है जो कि सीधे ऑफिस ऑर्डर से या कैबिनेट डिसीजन होता है, कि कैबिनेट डिसीजन की भी चीजें पार्लियामेंट में वो उसका एक अलग कैटेगरी बना है। एनीवे दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट राइट नाउ। लेकिन यह है पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो मेजर क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट हैज टू बी लेड बाय गवर्नमेंट, अदरवाइज इट विल बी नॉट कॉल्ड एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। इट वुड नॉट हैव ओनरशिप ऑफ एनी गवर्नमेंट। 51% आप ये जानते हो कि 51% जो है इसमें स्टेक होना चाहिए इसी order. So most of the PSU, you name any PSU, they are mostly public corporation. Okay. And the fourth is government companies.
established on the basis of Company Act. कंपनी जो है दैट इज ऑलरेडी एक्ट, उस कंपनी एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियां भी अपने को फॉर्म करती हैं और सरकारी कंपनियां भी करती हैं। तो वो कंपनी एक्ट के तहत होता है। आप इसको यू कैन स्टडी दिस विद एनी बुक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हालांकि देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एस्कोप, SCOPE, आप यू नोट इट डाउन, SCOPE, Standing Conference of Public Enterprises. Its full name is, and all PSUs, around 242 PSUs were earlier, and now that has, the number has come down because many have been disinvested, many have been stopped, many have some PSUs have sick also. So that SCOPE is the organization of, and you can get many information from the SCOPE website regarding PSUs, public sector undertaking. And fifth category of PSU who are established under 1860 Society Act, or that is called NGO, non-government organization. You can identify many institutions have been established under 1860 Society Act. Okay. And the next category is under Cooperative Act. Cooperative Act के तहत भी कई सारे PSU बने हैं। Under that you can name NAFED, National Agriculture of NAFED से ही वो आलू और प्याज की खरीद करता है NAFED, और जो बहुत सारे ऑफ सीजन में जब महंगाई बढ़ती है तो वो मार्केट में जारी करता है। NAFED एक ऑर्गेनाइजेशन। Earlier used to be Crimco, that is a fertilizer company. It's also a cooperative company, and Government of India has some stake in it. Earlier IFFCO used to be a big fertilizer producing company, Indian Farmer Fertilizer Cooperative. The Government of India has some share in this company. Now that company, which is governed by their own body, उसका एक चेयरमैन होता है और फिर उसका MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। So that IFFCO company has bought back all Government of India shares, and now there is no ownership of Government of India. They themselves are, their cooperative society is the sole owner of that IFFCO company, which is regarded as one of the big fertilizer company in the world, not only in India. तो कई cooperative society एक्ट के तहत भी PSU जो है बनते हैं। ये मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, आपको इसको और अपने तरफ से भी स्टडी करना चाहिए। Now I come to the third aspect of my lecture on public sector, that is the public sector and economic planning under different 5-year plan. Okay, you all may be knowing that earlier we have a development set that was being run through of 5-year plans. Now that idea has been scrapped since 1917, and now we have a open plan, open development objective, which is generally expressed in terms of annual budget, and only suggestions are being taken from Niti Aayog that work as a think tank. It advises the Government of India on many economic fronts. They simply advise it, otherwise the all allocation, financial allocation, and all kind of objective planning, it is generally expressed in the annual budget. Now annual budget has become very important, and the 5-year plans has gone. But under 5-year plan, it means कि 50 करीब 65 years, for the 65 years we have been running under 5-year plans, and we were setting our objective target of economic development. So public sector was given much importance in our 5-year plans. You can say 5-year plans were actually laid out for promoting public sector, or for you can say pronouncing public sector. 5-year plans इसीलिए लाए गए। तो फर्स्ट 5-year plan जो है, it was brought in year 1951. Okay,
1950 में प्लानिंग कमीशन बना एंड 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। तो पहले 5 ईयर प्लान में पहले 5 ईयर प्लान में we have given more emphasis on food supply क्योंकि we have a shortage of food grains at that time, we were not self sufficient and price stability was given importance and public sector, particularly the defense sector, was given importance. In second 5 year plan, I am very briefly I am telling, in second 5 year plan which was started in 1956 and that was called as PC Mahalanobis plan also. PC Mahalanobis was a very big economist and he has some particular model of development that is called Harrod and Dover model. Harrod and Dover model was मतलब कि और ये टोटल एक इकोनॉमिक प्लान था। It was a plan idea coined by PC Mahalanobis. He was a big economist. आप नोट करिए कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ये जानना चाहिए। PC Mahalanobis model, second 5 year plan was based on PC Mahalanobis model called as Harrod-Dover model. HARROD DOMAR Harrod-Dover model. So in first 5 year plan, our actual growth rate achieved was 3.6%. In first 5 year plan, our actual growth rate achieved was 3.6%. And we get focus on agriculture, power, transport, and price stability as I earlier told. In the second 5 year plan, first time public sector came in the full swing, and it was given responsibility of commanding heights of Indian economy. Public sector got the role of commanding heights in the Indian economy, and this model has fixed a target of 4.5% growth, annual growth. 4.5% was the targeted growth, but the achieved growth was 4.3%. The actual growth rate was 4.3% against the target growth of 4.5%. The second 5 year plan I am talking about. And the second 5 year plan was based on heavy industrialization of the country. It was known as the heavy industrialization of the country, and very big plants like Rourkela, Bhilai, Bhakrarangal Dam, these were all product of second 5 year plan. And in that year, we have a first industrial policy of post-independent country. And yesterday I told about this on Saturday. The first industrial policy came in year 1956. And after 1961, we did not have 5 year plan because we had some problem. No, sorry. After 1966, because we were indulged in Indo-Pak War, Indo-China War, and also we have a consistent drought season in the country. So 1961 to 66 was the third 5 year plan term, but it was converted to 3 annual plan. And target was 5%, 5.6% growth, but the achieved real growth was only 2.6%. In the
three annual plan. And our objective was becoming self-reliant, self-generative. Agriculture was given top priority. I can tell you this was the year when agriculture was given a prime importance, and we laid out the story of green revolution in the country. This was the year 1960 onwards. We started the process of green revolution in the country. And as I told you, in 1962 we had the Indo-China War. In 1965 we had the Indo-Pak War. And in 1965 and 1966 we have a consistent drought. So three annual plans were laid out. 1966 to 69 we only had three annual plans. We did not have any 5-year. And till this time agriculture was given full momentum. We took so many measures for our agriculture development. We imported some high yield variety of seeds from Mexico. Norman Borlaug, a very big scientist, agriculture scientist, and we took the help of Norman Borlaug. And our Indian scientist M.S. Swaminathan, he also emerged as a very young agronomist, or you can say the agriculture scientist. And at that time we had our agriculture minister, his name was C. Subramanian, and our prime minister, the then prime minister Lal Bahadur Shastri, he gave the slogan of Jai Jawan and Jai Kisan. So these all factors laid out the base for agriculture development, agriculture revolution, that was known as Green Revolution. And since then India became self-dependent on food grain, particularly the food grains. After that, we have a white revolution, blue revolution, like that. So, till 1969, 74, we have a fourth 5-year plan, in which target was 5.7% of growth rate, but we achieved only 3.7%. Okay, and growth with stability was the main objective. Progressive achievement with a self-reliance. And fifth plan came in 1974 to 79. Target was 4.4% growth. Actual achievement was 4.8% growth. So first time in 5 years, in fifth 5-year plan, we have a more real growth, achieved real growth than the targeted growth rate. It happened only in fifth 5-year plan. The era was 1974 to 79. And this was the time when we have a high inflation rate. We have a petrol prices high in the world, and for that matter, planners have some difficulty in adjusting all things and like that. So fifth 5-year plan is the objective is removal of poverty and attaining of self-reliance. In 1978, there was a rolling plan, 1978 to 80, and the Janata Party government came in the power. It was the first non-Congress government in the country. They started their Janata plan, that term was 1978 to 83, and they gave more importance to employment generation, and they were against the foreign companies and also the big domestic private company. They given more importance to a small scale industry like that. But unfortunately, Janata Sarkar didn't survive much. And in 1980, Congress party again came in the power, and they again brought their sixth 5-year plan, that term was 1980 to 85. And 1980-85 का जो growth target था वो 5.2% था, and the achieved growth rate जो था, ये आप कहीं भी आप टेक्स्ट में पा सकते हैं, ये तो जस्ट फॉर एक उसके लिए हम तो एक्चुअल जो था वो 5.7% ग्रोथ था और टारगेट जो था वो 5.2%। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो
तो आज जो स्किल इंडिया या स्किल इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज TRYSEM, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म है. Now that has been converted into Skill India. Seven plan. One thing I would like to know that I am expecting also. In the sixth 5-year plan, very there was a focused endeavor on behalf of government to decrease poverty, create employment. For that matter, two important programs were laid out, and that came in year 1980. That is known as IRDP program, Integrated Rural Development Plan, and second is called NREP, National Rural Employment Program. You can say it was the earlier version of MNREGA, NREP, National Rural Employment Program. And the IRDP program, it brought some variety of schemes to how to remove poverty, how to decrease poverty, and for that matter, many things were given on the loan, like bullock cart, like rickshaw, like a buffalo, like a cow. So person can have some source of employment and source of some activity. So that schemes were done under IRDP. Now the seventh plan starts from the year 1985 and it continued till 1990. The seventh 5-year plan has also the achieved growth was more than the targeted. It can be regarded as good development in terms of Indian economy. We have a target of only 5%, but the achieved real growth was 6%. And the food, work, and productivity, it was the main objective of that plan. 1990 to 1992, there was no plan, it was a plan holiday. It was called 1992 because there was some political uncertainty. We did not have a full majority government at that time. We most of the time, which started from the VP Singh 1989, and then Narasimha Rao came, he was also not in the full majority. VP Singh was supported by two parties from outside, Left Party and BJP, that also didn't survive. And though the Narasimha Rao government survived, but it faced some time to time problem also in terms of their political stability. Now, in 1996, there was a change of government. Now, the new government was called United Front Government, UF government, under the leadership of Mr. Deva Gowda, followed by पंजाब के थे देव गौड़ा के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के पहले जो विदेश मंत्री के रूप में बड़े, उनका नाम था, इसका दाढ़ी रखते हैं, ये गुजरात, IK Gujarat. So that UF government was run by IK Gujarat and before HT Devgowda. It also survived till 1998. Now Vajpayee came. So then we have a eighth plan in 92 to 97. And under this era, the target was only 5.6%, but the growth was more than the target. It was 6.8%. It was attributed to new economic policy, which just created a new climate for investment in Indian economy. Now, plethora of investors came from the domestic sector as well as from the foreign sector. Many multinational came, FDI came, FII came, liberalization was started. So we have a more growth rate than our targeted growth rate. And 6.8% can be achieved. It was the highest growth rate in the history of post-independence India. And this was the time when the share of public sector in the GDP reduced to 34%, which earlier used to be more than 50%. Lekin now, coming of 1990 or 2000s, the millennium year, now the private sector have a more share in comparison to public sector. 1997 to 2002, we have a 9 5-year plan. 9 5-year plan means 9 5-year plan. 1997 to 2002. And objective was
target is poverty alleviation, growth rate with social justice, predominantly in private sector. तो ये कुल मिलाकर के पब्लिक सेक्टर रूल जो है एट स्टार्टेड टू डिक्रीज इन द सब्सिक्वेंट 5 year plans. The main focus was to generate more and more investment climate in the country, and for that matter, when these things were taken as initiative. So this is the story of public sector in the different 5 year plans, and 5 year plans get end in year 2017, and we have no 5 year plans after 2017 in documented term, though the things are going on, but in different fashion. Talking about public sector, because I have to teach you regarding public sector, so that part was the public sector in the different 5 year plan. Now I would like to say that public sector since 1991 was given less importance, and private sector has a more major role, and till 31st March 1996 we have a total number of 246 public sector undertakings, public enterprises in different form, like government company, corporation, you can say financial PSUs, and infrastructure PSUs, energy PSUs, so many PSUs that just I am coming on that. जो PSU है उनके करीब 10 कैटेगरी. Basic infrastructure PSU, you can note it down. It's a good point for the knowledge. Basic infrastructure PSU, heavy machinery PSUs, like BHEL, like HEC, Heavy Engineering Corporation. फिर जो है एनर्जी PSUs, उसके दो पार्ट हैं, फॉसिल एनर्जी के अलग, यानी कि पेट्रोलियम के BPCL, IOCL मतलब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ONGC, ये सब जो है पेट्रोलियम PSUs है. और जब आप इलेक्ट्रिसिटी के PSUs की बात करेंगे वो है NTPC, NHPC, PFC, और क्या बोलते हैं PFC का मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और फिर जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, PGCI, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये सब कौन है, ये PSU. फिर जो है सर्विस इंडस्ट्री के अलग PSU. अब जैसे कि NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो IT का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU. सर्विस इंडस्ट्री में कई सारे होटल्स थे, जैसे यही रांची में रांची अशोका था, दिल्ली में कई सारे होटल्स थे, एयरपोर्ट के पास सेंट्रूर होटल था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको बाद में स्ट्रेटेजिक सेल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया. फिर B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो है PSU जो थे, जैसे शायद MMTC है, वो बिजनेस टू बिजनेस है, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, MMTC. फिर जो है बिजनेस टू कंज्यूमर्स और फाइनेंस एंड इंश्योरेंस. अब फाइनेंस में आप कह सकते हैं कौन PSU है, तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जो रेगुलेटर है वो है RBI. RBI क्या है, आप तो एक चीज जानते होंगे कि दो तरह के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा मार्केट का नाम क्या है बताइए. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मार्केट. वो किनको मनी मार्केट किसको कहा जाता है सर, जिसमें ट्रेजरी बिल्स हो, कमर्शियल पेपर्स हो, तो जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप बोलते किसको है? मनी मार्केट में कौन कौन से प्लेयर हैं सर आपकी जानकारी? बैंक और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. तो जितने बैंक हैं ये सब नेशनलाइज बैंक हैं. जो कब हुई? ईयर 1969.
It was a landmark year in the history of economic development of India. 1969 के before banks were not nationalized. They were run under some trust or private player like that. They were only regulated by Reserve Bank of India. Otherwise, there was no any ownership on behalf of government. But in 1969, banks were nationalized. 14 banks nationalized हो गए, जिसमें PNB और वगैरह। और जो SBI है, वो 1955 में nationalized हुआ. That was earlier known as Imperial Bank of India, which was converted, renamed as State Bank of India in 1955. 1969 में 14 बैंक हो गए और 1980 में 6 और बैंक हुए। तो वी हैव अ टोटल 20 to 21 नेशनलाइज्ड बैंक। अब उनको डाउनसाइज किया गया है, उनको एक साथ कंबाइन करके 3-3, 4-4 बैंक को मिला करके एक बिग बैंक बनाया गया अंडर मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको उनका कैपिटलाइजेशन बेटर। तो मनी मार्केट में जो है बैंक आते हैं वो शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट में कौन से आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत सरकार की जो पीएसयू जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल पीएसयू में ये सारे बैंक आते हैं। अच्छा, कुछ जो बैंक है कमर्शियल बैंक है और कुछ जो है स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सीडीबी, जैसे नाबार्ड है। नाबार्ड जो है सब्सिडियरी बैंक ऑफ आरबीआई, वो केवल एग्रीकल्चर के लिए करती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग। तो जो फाइनेंस के अलावा इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेयर थे। वो कौन थे? 4 बड़े कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस ऑफ कॉमर्स, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, फिर जो है ये नेशनल एश्योरेंस, और एक नेशनल एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली। ये 3 प्लेयर जो थे वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, और एक जीआईसी थी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन उनको भी कहीं पर डाइवर्स्ट कर दिया गया है, उसका प्रेजेंट स्टेटस चेक करना होगा। लेकिन इंश्योरेंस में अब क्या है, उसके लिए एक रेगुलेटर आ गया है। जैसे बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है, ये बताइए। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस हो या पब्लिक सेक्टर का हो या फॉरेन सेक्टर का, आप बताइए कौन है रेगुलेटर? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका नाम है इरडा, IRDA। वो एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का। और ये बताइए कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Earlier it was CCI, Capital Controller of India, before 92. जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो आफ्टर दैट we instituted SCBI। तो ये जो है, ये सारे जो है जो कैटेगरी है पीएसयूज का, ये कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 246 जो है, और इसकी पूरी लिस्ट है। मैं हो सकेगा तो स्कोप की डायरी आप लोगों को शेयर करूंगा, तो उसमें सारे कंपनी का नाम लिखा हुआ मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि पब्लिक सेक्टर के डिमेरिट क्या है। पब्लिक सेक्टर के डिमेरिट क्या है, आप बताइए, आप सोच के बताइए। हाँ, ईशा कुमारी है ना। पब्लिक सेक्टर आप क्या सोचते हो, क्या गलत करता है? Zombie industry में सकते हो, like BSNL, it's just patenting। जो लोग BSNL में काम कर रहे हैं, to dissolve BSNL because almost redundant हो गया है, तो they can get employed in better this thing companies में। वो तो ठीक है, वो तो मतलब कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में बोलता, बट फॉर द कंट्री पर्सपेक्टिव what do you find, what ill effects or the defects, demerit in PSU? sir, maybe over bureaucratization. Yes, this is one of the point. Rate One of the taxes, point. Yes. rate taxes, And
Red tapeism. delay, Rate tapism. red tapeism. Very It's Corruption. it's a substitute. What you can say is a substitute for what for bureaucracy, bureaucratic hurdle and red tape. Slow process. And Slow process. slow process is generally happens in the government. It is true. हालांकि आप पीएसयू में जाएंगे उनका जो मैनेजमेंट देखेंगे इट जस्ट लुक लाइक ए प्राइवेट कंपनी क्योंकि दे हैव बीन गिवन ऑटोनॉमी दे हैव अ सेपरेट एनवायरनमेंट दो दे आर गाइडेड बाय मिनिस्ट्री बट नॉट ऑल द टाइम 24/7 they have their own management and they take day to day decisions. Some are very robust by then. In the debate of public sector versus private sector, it is being said that the public sector are not well managed, they are more inefficient, they have a less productivity and hence less profitability also. But the best managed airline in the world is Singapore Airlines, and that is owned by public sector or public sector company. So anything can be managed, whether it comes under government sector or private sector, no issue. तो इसका जो डिमेरिट है लॉन्ग डिले एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवर आमतौर पे गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं वो लंबा लगता है और लंबा होने की वजह से जैसे कि बुलेट ट्रेन के बारे में आपने पूछा था कि बुलेट ट्रेन कब तक बनेगा तो दैट्स ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बट इट हैविंग वेरी लॉन्ग डिले तो इससे लॉन्ग डिले से होता क्या है जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है तो दैट इज ए बर्डन ओवर द पब्लिक एक्सचेकर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक दूसरा है कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लाती है तो गवर्नमेंट हैज टू मेक एक्विजिशन ऑफ लैंड गिवन एनवायरमेंट क्लियरेंस तो ये जनरली डिले होता है पब्लिक सेक्टर रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी आप लोगों ने बोल ही दिया चौथा है कि गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस भी होता है तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम क्योंकि who even become a minister he just want to show his power so he just try to study how many PSUs comes under his ministry so just he try to find out them and just try to just command them and just it hampers their day-to-day functioning and all kind of plan and productivity lack of cost consciousness गवर्नमेंट सेक्टर में जो लागत लगती है उसको लेकर के आप उस तरीके से फिक्रमंद नहीं रहते हैं जैसे कि प्राइवेट प्लेयर होते हैं जैसे आप अपना घर बनाइए तो आप देखेंगे कोई मजदूर बेकार में समय तो नहीं खराब कर रहा कहीं कोई बर्बादी तो नहीं हो रही है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लोग क्लियर नहीं करते और अगला जो है इसका डिमेरिट है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी तो इफ until unless you become profitable how can you be sustainable otherwise you have to stop or you will become sick so these things have been happening in our public sector and that is why dozens of public sector got sick they get closed and people were unemployed and ultimately government has to sell them or divest them like that so we had one institution called earlier that was called as BIFR Bureau of Industrial and Financial Reconstruction तो ये जितने सी कंपनी होते थे BIFR आप लोग लिख लो BIFR Bureau of Industrial and Financial Reconstruction ये जितने सिक इंडस्ट्री होते थे सिक PSU उनको जो है इसके जरिए सुधारा जाता था in the course of this lecture I would like to mention recently some long sick PSUs have been revived. Can you name them? If you are a habitual of reading newspaper, so you can name them. You just name any public sector undertaking which was closed for more than 20 to 30 years. Now they have been revived under the willpower of new government or the present government, state government or central government. आप बता सकते हैं किसी का नाम जो PSU बंद था और रिवाइव हुआ बताइए आप अपने केरला का बताइए केरला में कोई PSU बंद था और फिर से रिवाइव हुआ
You have got your graduation in Kerala, na? No. हाँ, from where? Mumbai. हाँ? Mumbai, sir. अच्छा, मुंबई. Okay, okay. Maharashtra has a story of dyeing cloth mills. During 1980, Maharashtra was the biggest center of textile industry in the country. But they all have strikes and lockouts. And most of the textile mills were converted into new industrial ventures. And all textile workers, because they organized a big strike, continuous year-long or 2-year-long strike under Samanta Datta. He was a big trade union leader. And now the textile industry just got collapsed. And it was transferred to Surat, Ahmedabad and some other parts. So Bombay is a good story. Now the Bombay is not an industrial capital, Bombay is only financial capital. PSU पब्लिक सेक्टर का एक डिमेरिट और है, they are regarded as white elephant. White elephant is what? White elephant जो है केवल जो है उसको आप खिलाते हो, खर्च करते हो और वो शोभा के लिए, उसका कोई रिटर्न नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, इसलिए कहा जाता है ये सफेद हाथी बनकर के रहते हैं. That is why it is being termed because it has no productivity. तो जो सिख PSU था, जो रिवाइव हुआ, आपने गूगल करके देखा क्या? सिख पब्लिक सेक्टर जो रिवाइव हुआ, बरौनी का फर्टिलाइजर प्लांट बंद था काफी सालों तक और वो रिवाइव हुआ. सिंदरी में भी प्लांट था, उसको भी रिवाइवल किया जा रहा है. सर वहाँ तो ऑयल रिफाइनरी है. ऑयल रिफाइनरी भी है, फर्टिलाइजर प्लांट भी है, वहां पर मोकामा में उसका भी कारखाना है वाइन का. वहां इसलिए तो बरौनी को बिहार का सबसे मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सिटी कहा जाता है. तो वहां पर पावर प्लांट भी है और रिफाइनरी तो खैर है. वो रिफाइनरी किसका है, किस कंपनी का? इंडियन है. गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट वो भी बहुत फेमस था, वो भी रिवाइव गोरखपुर. आपने रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा, HEC. That used to be a big company, but it was degenerated and now somehow it has been erected again. तो ये स्टोरी है, इंडियन पब्लिक सेक्टर में बहुतों के बंद हो गए. So these are the things which are related with public sector, and I think I just have given you some overview of this whole public sector, merit, demerit, why it was started, what are the facts, what is the present status. The thing is that there was a time in 1996 we have an investment of around 56,000 crore in PSU job, in 240 PSU. Figure may be changed, ये तो just एक notional I am telling you कि, और इसमें जो शेयर था वो पूरे देश के GDP का 25% शेयर था PSU में. लेकिन अब उन चीजों को डाइवर्स्ट किया जा रहा है और अब ये डिबेट चल रहा है हमारे यहाँ कि सरकार का काम डे टू डे चीजों को करना नहीं है. मॉडर्न फूड जो आइसक्रीम बनाती थी तो कहा जाता था कि सरकार का काम आइसक्रीम बनाना नहीं है, होटल चलाना नहीं है, लोगों को कपड़े देना नहीं है. NTC एक बहुत बड़ी वस्त्र की मिल होती थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, दैट वाज आल्सो डाइवेस्टेड. मैं डिसइन्वेस्टमेंट पर आ रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट पर मैं आ रहा हूँ कि व्हाट इज दिस इज आल्सो वन ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. So talking about public sector, we have a very rich story and we did a lot in terms of public sector. That public sector is still continuing. You can say the Indian Railway doesn't have any private industry. That is solely run by Government of India, and for last 10 years, Government has spent more than 3 lakh crore only in railway sector. Talking about the airport, many new airports are being constructed. And एयरपोर्ट की कौन सी कंपनी है? PSU, आप बताइए. Anybody can tell? क्योंकि दिल्ली और मुंबई तो प्राइवेटाइज हो गया है.
एक को कंट्रोल अदानी कर रहे हैं और एक को जीएम मार कर रहा है, जनरल जीएम रेड्डी। लेकिन जो छोटे छोटे एयरपोर्ट है जैसे पटना का, दरभंगा का, या और भी जो एयरपोर्ट है, बेंगलुरु एयरपोर्ट प्राइवेटाइज है, कॉर्पोरेटाइज है, हैदराबाद एयरपोर्ट भी कॉर्पोरेटाइज है, तो कुछ ग्रीन एयरपोर्ट बन रहे हैं, वॉटेवर जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले पीएसयू है, दैट्स नेम इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डबल एआई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया कंट्रोल्स ऑल द एयरपोर्ट। और जो एयरलाइन कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट की कौन सी एयरलाइन कंपनी थी जो पहले थी और आज नहीं है, ये तो आपको बताना चाहिए। आप बताइए, लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, गवर्नमेंट कंट्रोल कौन सी एयरलाइन कंपनी थी? एयरप्लेन जो चलाती थी और वो सरकारी थी। आप लोग और बताइए, कोई और बताइए, आप बताइए। एयर इंडिया। एयर इंडिया। और एयर इंडिया के अलावा भी कोई कंपनी थी क्या? बोलिए। एयर इंडिया के पहले भी कोई कंपनी थी क्या? इंडियन अभी एयरलाइंस। आप लोग इतने भी छोटे उम्र के नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा। इंडिया एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। So it was merged with Air India. In 1950, we had only one company, Air India. It was controlled by Tata. It was nationalized in year 1956. Then it was divided between two companies, Indian Airlines for the domestic sector और Air India for the foreign sector. विदेशी उड़ान के लिए Air India और घरेलू उड़ान के लिए Indian Airlines. लेकिन they all were running under, consistently running under losses, mismanagement like that. तो इंडियन एयरलाइन को क्लब कर दिया गया एयर इंडिया से और एयर इंडिया इज नाउ बीन divested, totally divested from the government share. Government का कुछ नहीं है and government has sold out to whom? टाटा। Tata is now the again owner of Air India, which used to be owner of Air India before 1955. तो और इंडियन और बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर। तो इसीलिए कहा जाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, बिजनेस करने के लिए प्राइवेट प्लेयर आएंगे, बट दे हैव टू अबाइड बाय द रूल गाइडलाइन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। और रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट की कौन है? डबल एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबकी अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ओके, तो पीएसयू की बात करें तो मैं थोड़ा सा टेलीकॉम की भी बात करूंगा। You may be not knowing about that company. Can you name any government company who operates telecom services in the country? Yes, BSNL। Its full name is Bharat Sanchar निगम Nigam। लिमिटेड। ये मतलब कि earlier it not used to be BSNL. It was established in year 2000. Earlier it was Department of Telecom, DOT, and DOT was managing the whole telecom services, generally basic telecom होता था, बेकार मोटा की बात है। और there were separate company for city like Delhi and Bombay. Can you name them? आप नाम बता सकते हैं उनका? BSNL के अलावा और कौन telecom player थी which were owned by government? Still owned by government, but not very. It is not very comes in the notice. MTNL। yes. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। So there were two government players in the telecom circle, DOT for the whole India, and for Delhi Mumbai MTNL was there. But in year 2000 DOT was scrapped and it was given a corporate status in terms of BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये PSU है, that is still operating, but many private player थे। हमने तो इस पर बहुत कॉन्टिन्यूअस स्टोरी लिखी है न्यूज़पेपर में, आर्टिकल लिखा है टेलीकॉम लेकर के, 2G का जो विवाद आया, उसके अलावा जो बैंडविड्थ को लेकर के आया, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट जर्नी है। इंडिया की एक बड़ी क्रांति है ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन और प्लस आईटी रेवोल्यूशन। मेरी जो एक किताब है डायग्राम ऑफ सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया, तो उसमें जो मोस्ट हैपनिंग इवेंट्स है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड,
उसमें आईटी रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ये तीनों चीज अलग अलग और भी चीज है। मैं चाहूंगा कि उस पर भी कभी आपसे क्लास करूंगा तो एक व्यू पॉइंट बनेगा आप लोगों के ध्यान में। तो ये बीएसयू की स्टोरी रही है और आज टेलीकॉम मार्केट 80% हैज बीन ग्रैब्ड बाय प्राइवेट प्लेयर। तो अब बीएसएन जैसे जैसे सर्वाइव कर रहा है लेकिन तो कभी कब खत्म हो जाएगा उसको कहा नहीं जा सकता, वो काफी ग्रोथ कर रहा है। तो these are the things, these are the story of public sector in India, and I think you all have to elaborate it. I will give you assignment so that you can have access to some other text material and all reference items, and I think I will give you assignment on all 10 topics which have been prescribed to me, और जिससे कि क्या होगा कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आप थोड़ा सा लेवल करेंगे तो यू हैव अ मोर नॉलेज, और फिर बाद में मुझे भी मजा आएगा कि बच्चे बड़ा टेकअप कर रहे हैं तो मुझे कन्वर्सेशन करने में आई विल बी जस्ट लाइक ए इंटेलेक्चुअल फ्रेंड, नॉट एज ए टीचर एंड स्टूडेंट। तो वो दैट मैच्योरिटी यू विल अचीव सूनर और लेटर। तो द सेकंड टॉपिक जो है आज का, ये जस्ट ओवरव्यू है जो आई एम जस्ट गिविंग यू। आई नो दैट इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट ऑल द होल लेक्चर ऑफ 2 आवर। तो एक ये है कि उसी में आप कुछ सुनेंगे, कुछ टॉप ऑफ माइंड में कुछ चीजें आ जाएंगी, स्टोर हो जाएगा, तो दैट कैन बी एलोबरेटेड इन द नेक्स्ट पेज। तो दिस इन्वेस्टमेंट, आप ये देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट का अर्थ तो जान ही रहे हैं। Yes, sir. इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यू ऑल नो मे बी नोइंग इट, ओके। एंड इसमें लग गया डिस, तो इसका मतलब यह है कि व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड दैट आई हैव ब्रॉट डाउन और डिस इन्वेस्टेड। तो दिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल केम इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप सबको जानना चाहिए कि हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है 1991, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज द इट वाज द मिक्स ऑफ सो मेनी पॉलिसी। इसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। I can easily understand, I don't think any need of elaborating it. कि प्राइवेटाइज करना है, जैसे कई सारे मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया, नए प्राइवेट प्लेयर को बुलाया गया, कुछ एरिया रिजर्व कर दिया गया कि यार गवर्नमेंट विल नॉट कम, ओनली प्राइवेट सेक्टर विल कम एंड इन्वेस्ट। लिबरलाइजेशन मतलब कि लाइसेंस, परमिट, कोटा, ऑल काइंड ऑफ प्रोसीड्यूर्स दे वर स्क्रैप्ड। सिंगल विंडो स्कीम लाया गया कि एक विंडो में खड़े हो और हर तरह का लाइसेंस ले लो, सारे फॉर्म भरो। जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना तो एक ही जगह हर काम हो जाता है, तो सिंगल विंडो स्कीम लाया गया, लिबरलाइज किया गया सारे रूल और एक्शन। आप बिजनेस, उसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, कि बिजनेस करने का आसान तरीका। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड से जोड़ दिया गया कि वर्ल्ड की कंपनी आएगी, वी विल नॉट प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर और डोमेस्टिक कंपनी, कि विदेश वाला आएगा और बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आएगा और हमारे घर को खत्म कर देगा। नहीं, आप कम्पीट करो, आप उससे बेटर माल दो, आपका ज्यादा बिकेगा। तो छोटी कंपनी बड़े कंपनी से कम्पीट करेगी और बड़े कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी से कम्पीट करेगी। आप पीएचडी में एक चैप्टर ये भी आ गया, एमएनसी और टीएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। वो क्या है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो फॉर्च्यून और फोर्ब्स की लिस्ट में होती हैं, उनके एक एक कंट्री, एक एक कंपनी का जो टर्नओवर है, कारोबार है, वो एक एक कंट्री के जीडीपी से भी बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। अब आज की तारीख में तो आप यू नो अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनविडा, गूगल, लाइक बहुत सारी टेक कंपनी है, लेकिन कभी जनरल मोटर्स होता था जो ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, इस तरीके का, और भी ये फोर्ड होता था, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये सब पहले कोका कोला और पेप्सी होते थे, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वर अलाउड टू कम इन द कंट्री एंड जस्ट मेक देयर इन्वेस्टमेंट, एंड गवर्नमेंट हैज दे हैव टू नॉट टू टेक एनी मेजर क्लियरेंसेस लाइक दैट। तो कई सारे सेक्टर टू सेक्टर खोल दी गई, पेट्रोलियम सेक्टर खोला हमने,
भाई इसमें इतने प्राइवेट पब्लिक आएंगे, टेलीकॉम खोला तो इसमें प्राइवेट पब्लिक आएंगे और विदेशी आएंगे, हमने इंश्योरेंस खोला, बैंक खोला, एजुकेशन खोला, हेल्थ खोला, मेटल्स एंड कोल खोला, एल्यूमिनियम खोला, हैवी इंडस्ट्री खोला, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खोला, पावर जनरेशन में खोला, ये अलग अलग सेक्टर है इकोनॉमी और उसमें लोग आए और अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो डिस इन्वेस्टमेंट का जैसा मतलब मैंने बताया कि भारत सरकार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो भारत सरकार को ये लगा कि देयर आर सम इंडस्ट्री हु हैव बिकम बर्डन ओवर द किटी ऑफ गवर्नमेंट, उनको हमें पैसा हमारी पूंजी उसमें लाखों करोड़ की लगी है, नाउ आई डोंट हैव टू कंटिन्यू दैट पूंजी, उसका रिटर्न हमारा मारा जा रहा है, स्टिल वी आर रनिंग अंडर लॉस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई, Ministry of Disinvestment. First time it was instituted in 1990 decade. It got pronounced under Vajpayee regime since 1988. लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का काम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में शुरू हो गया था। आपका ये जो है क्या नाम है VRS टर्म, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉय थे दे वर गार्डेड विद वेरी स्ट्रांग ट्रेड यूनियन पॉलिसी, आप उनको हटा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल स्कीम लाना पड़ा कि आप स्वेच्छा से रिटायर हो तो हम इतना मालामाल आपको दे देंगे और दूसरी नौकरी ढूंढ ली। सरकार के पास गवर्नमेंट हैज नो एनी अदर ऑप्शन, सो दे कम विद DRS विद गोल्डन हैंड्स एक्ट, दिस वाज अ टर्म व्हिच जनरली यूज्ड टू बी दैट एरा। तो मैं उस समय जर्नलिस्ट था तो या पढ़ाई के भी दौर में था तो ये सब हमने सुनने को मिला। और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, VRS हो गया, गोल्डन हैंडशेक हो गया, स्ट्रेटेजिक सेल हो गया, क्या बोलते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको लिबरलाइज किया। पहले जो है कई तरीके के सेक्टर्स थे, गवर्नमेंट कंपनी हमारे यहाँ खुद ही ये एक एक्ट बना था MRTP एक्ट, मोनोपोली ट्रेड मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP। उसमें क्या था कि कोई भी कंपनी खूब बड़ी कंपनी ना बने तो मोनोपोली उसका रहे, सरकार ने उसको रोकने के लिए कई सारी चीजें जो है उपाय किया हुआ। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस चीज को भी हटाया गया, क्यों कि हम चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर भी खूब इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट इकोनॉमिक्स का आप ये पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में कि जो मार्केट इकोनॉमिक्स आता है उसका एक ही स्टिमुलेंट है कि प्रॉफिट दीजिए और प्रॉफिट जब देंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर जो है कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो डिमांड होगी और डिमांड होगी तो फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो साइकिल है इकोनॉमी का, तो उसी के तहत जो है हमने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को काफी लिबरल बना। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि हमारे यहाँ 1990 के बाद से यूज होना शुरू हुआ, क्योंकि 1950 से 1990 स्ट्रॉन्ग 5 ईयर प्लान्स का एरा था। 1950 टू 1990 इट वाज एन एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। आप इसको दिमाग में रख लें या नोट भी कर लें, जो भी चाहे। सेकेंड जो है 1990 ऑनवर्ड्स इट वाज एन एरा ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन, मार्केट एंड सो ऑन। ये मार्केट इकोनॉमी का दौर था 1990 ऑनवर्ड्स। और 2015 के बाद नाउ दिस इज एन एरा ऑफ नीति आयोग where they act as a think tank and provide input to government of India and they try to help in creating a cooperative federalism। आप cooperative federalism जानते हैं क्या होता है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है cooperative federalism। फेडरलिज्म जानते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है? क्या सर यूजुअली डिवीजन ऑफ पावर होता है और सेपरेट जुरिसडिक्शन होता है। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हाँ ओके फाइन। तो कोऑपरेटिव फेडरल कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि ऑल
center and all states, they will act as a partner, and they all act in a cooperative federalism, मिलजुल करके विकास करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करेंगे। हालांकि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has given more financial provision to central government. फाइनेंशियल जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, एंड आवर स्टेट्स हैव टू डिपेंड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और दैट इज व्हाई फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो which gives its recommendation at every 5 years. So talking about this investment, you have easily understand what is the literal meaning of this investment. To just bring back your investment or just sell it and just reinvest this money and capital into another productive venture. And what the government of India did this during last 35 to 36 years, 35 years. So every year in the budget, now government of India decides what would be the scale of this investment. बजट में डिसाइड हो जाता है कि इस साल 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का 96 में ही 56,000 करोड़ का कैपिटल था सारे कंपनीज में। तो आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसको अलग अलग रास्ते से कैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है वो आप उसका टूल है वो मैं बता रहा हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सेलिंग स्टेक टू रिड्यूस द बर्डन, रेज फंड्स फॉर डेवलपमेंट, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैं जस्ट एक आपको खाता बता रहा हूँ। माइनॉरिटी और इसके जो टूल है कि आप आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे खास करके जो स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे, आईपीओ समझते होंगे क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी को अगर पूंजी जुटाना होता है प्राइवेट या पब्लिक, they come in the stock market and they just brought with some, वो शेयर तय कर देते हैं कि मुझे इतना लाख करोड़ या 1000 करोड़ मुझे जुटाना है, उसको शेयर में बांट करके और वो टाइम फिक्स कर देते हैं, उस टाइम पे पब्लिक को आईपीओ खरीदती है। तो एक तरीका वो भी है डिसइन्वेस्टमेंट का। दूसरा तरीका है कि ऑफर सेल, ऑफर फॉर सेल, वो एफएस उसको कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का एक है आईपीओ, दूसरा है ओएफएस, और तीसरा है स्ट्रेटेजिक सेल और प्राइवेटाइजेशन। उसमें आप मेजर तरीके से बेच देते हैं। आप ये बताइए कोई 2 या 3 कंपनी का नाम बताइए जिसमें कि पूरे तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया अपनी कंपनी। हालांकि आपको भी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी एयर इंडिया ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन पहले के कुछ 2-3 फेमस एग्जाम्पल। पहला बेचा गया मॉडल फूड 160 करोड़ में, वो टाइम है 2000 के पहले, वो पहले बेकरी का काम करता था, उसको जो है गवर्नमेंट ने छोड़ा। दूसरे ये कंपनी थी उड़ीसा की बालको, जिसके वो अग्रवाल जी जो है जिसके चेयरमैन, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसको स्ट्रेटेजिक सेल कर दिया। तीसरा जो है बॉम्बे का एक जुहू होटल होता था, उसको भी टोटल तौर पे स्ट्रेटेजिक सेल कर दिया। भारत पेट्रोलियम को भी स्ट्रेटेजिक सेल में लाया गया था, रिलायंस को बेचने की तैयारी थी, लेकिन इट डिडंट टर्न अप, और भारत पेट्रोलियम जो है अभी भी गवर्नमेंट पीएसयू बन के रह रही है, यानी इसको लिस्ट में गवर्नमेंट ने डाल दिया। तो ये 3 तरीके हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट तो मैंने बता ही दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट इसको पूरा कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका टारगेट रखती है। जरूरी नहीं कि हर साल, और फिस्कल डेफिसिट को कम करने में उस पैसे का यूज करती है। लोगों का एक पॉलिसी गाइडलाइन है कि जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी या सोशल प्रायोरिटीज के प्रोग्राम होंगे तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा उस पर लगाएगी। कई बार ये भी कहा जाता था कि जब मार्केट में अच्छा रेट मिले तब आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, सरकार की कंपनी का ज्यादा पैसा मिले। जैसे आप ही के यहाँ कोई चीज चाहते हैं आप घर में कि हम बेचें, तो आप पता करते हैं ना कि मार्केट में इसका दाम अच्छा मिल रहा है, 10 लोगों को बुलाते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा दाम देता है
वो आप देते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, वो स्टॉक मार्केट में देखती है किस चीज़ का हमें कितना पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तब वो स्ट्रेटेजी सेल करती है। और दूसरा तरीका ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने करीब 3000 से 5000 कंपनियां लिस्टेड है बीएसई और एनएसए में भी लिस्टेड है, तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी भी बहुत सारी लिस्टेड है। आप देखेंगे कि एक पब्लिक के लिए जो है ना वो इन्वेस्टमेंट खोला जाता है, जो शेयर मार्केट के जरिए आता है। तो हम आप शेयर खरीदते हैं, कोई ओएनजीसी का शेयर खरीदता है, कोई एनटीपीसी का खरीदता है, वो क्या है ना कि हमारा ओनरशिप हो जाता है। लेकिन मेजोरिटी स्टेक जो कि रूल बना हुआ है कि 51% तक होगा तो उसका होगा। कुछ निचले स्तर पर भी रखा गया है, जैसे कि कुछ कंपनीज है जिसमें कि 26% तक गवर्नमेंट ने ओनरशिप रखा और बाकी 3-4 कंपनी को उन्होंने बेच दिया और उसके वो बोर्ड में उसके मेंबर है, बोर्ड मेंबर। तो उसमें क्या होगा कि वो फैसले ले सकते हैं और कई जगह सरकार जो है अपना शेयर घटा देती है। ये आपको डिटेल में स्टडी करना होगा, हम तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, एक जस्ट आपको एक स्केच ऑफ स्टडी से आपको बता रहे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के नीति आयोग भी रिकमेंड करता रहता है टाइम टू टाइम। जो बीएसयू अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड कम देते हैं, जो सरप्लस कम जनरेट करते हैं, या सरकार के पास पैसे की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे कोरोना पीरियड में हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है 6.5% बढ़ गया, जो कि पहले होता था बहुत पहले। लेकिन सरकार ने एक एक्ट है एफआरबीएफ का क्या अर्थ है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, हाँ, FRBM। इस एक्ट के तहत आपको 4% ही फिजिकल डेफिसिट रखता है। तो उसका टारगेट जब बढ़ जाता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिजर्व का बाउंडिंग है, वर्ल्ड बैंक बनाई है, तो ये दिखाता है कि हमारा प्रबंधन फाइनेंस का कितना अच्छा है। अब तो बजट के क्लास के दिन बताएंगे बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, हो सकता है आप जानते भी होंगे, बहुत लोगों का इकोनॉमिक्स में अच्छा है। तो उसमें यह है कि 4.5% से बढ़ गया था कोरोना पीरियड, क्योंकि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर तो चल रहा था, बाकी एक्टिविटी जो है काफी डाउन थी, लॉकआउट था, तो सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा था और खर्चे तो पूरा करने ही थे। तो जब बढ़ गया बजट डेफिसिट, तो फिर अब धीरे धीरे सरकार उसको डाउनसाइज कर रही है, एंड दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम एट द टारगेटेड प्राइस, और आई थिंक दैट इज अराउंड 4 और इवन लेस देन 4। तो 2021 में हमने पीएसयू के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के या डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के एक पॉलिसी बनाई 2021 में, एंड अंडर दैट पॉलिसी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया decides about what quantum of disinvestment they have to pursue in the corresponding period or in the respective period. अच्छा, बहुत लोग जो है बाईबैक भी कर लेते हैं। बाईबैक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लिया जाए कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें लगा कि नहीं हमारी पूंजी घट गई है, हमारे पास पैसा है, प्रॉफिट है, हम दोबारा उसको खरीद लेते हैं, कंपनी ही खरीद लेती है, तो दैट इज कॉल्ड एज बाईबैक। ओके, तो इसमें 3-4-5 टर्म आए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, तीसरा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, चौथा बाईबैक, और पांचवा स्ट्रेटेजिक सेल और प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके से आप लिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी है जिसका कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है, और मुझे लगता है कि इस पर कुछ आप लोग का भी कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के चलें, और बाकी 5 ईयर प्लान्स जो अगला चैप्टर है वो हम कल के लिए छोड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ और आप लोग मौका दीजिए जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये आप लोगों की तरफ से क्वेरी शुड कम, आप लोगों की तरफ से ही आना चाहिए। इसको लेकर के कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कोई स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की कोई बातें हो, जितना मुझे ध्यान में आया दैट आई शेयर्ड विथ यू ऑल, एंड
रेस्ट अच्छा ये बताइए आपको टोटल 5 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं ना इसमें? एट है? एट 8. So first day I think all students were there. Second day we have only 7 students. And now today is 5. So rest have gone to home or कहाँ? वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए Conference के लिए? हाँ। सर जो गवर्नमेंट ने किया था विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो मिक्स किया था दैट विल बी कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट ओनली Bank of Baroda. यस सर विजय बैंक वाज मर्ज्ड विद मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा वो हाल ही में हुआ है. I think 2 or 3 years back. यस During the 2020 Corona, the post-Corona period that was done, and I was present in that press conference of Nirmala Sitharaman. तो मैं तो exactly I am forgetting, लेकिन करीब 4 या 5 बने थे. कुछ बैंक को बिल्कुल छोड़ दिया गया था. SBI was not touched. And even पंजाब नेशनल कॉर्पोरेशन हाँ कॉर्पोरेशन बैंक वो you can check it out from Google. And कि उसमें देखो कॉर्पोरेशन बैंक भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया है. सिंडिकेट बैंक भी है. इलाहाबाद जितने बैंक छोटे बैंक हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया गया है. इसका पर्पस है कि उनको मतलब कि उनके बिजनेस स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एफिशिएंसी उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाना. उनकी एक टर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इट गेट्स enhanced when consolidation takes place of several banks. So government of India has own vision कि by this process I will deliver much better performance. लेकिन ये था कि when Modi government came, most of the schemes were based on bank finance, whether Mudra loan scheme, whether or some other scheme like Jan Dhan Yojana. तो Jan Dhan Yojana के जरिए बैंक accounts were opened up, but it was estimated that the most of the accounts will have no any profit potential for the banks. क्योंकि जो 55 या 60 करोड़ 60 करोड़ जो जनधन अकाउंट्स जो हैं they have less than 2000 or 3000 rupees deposit. There is no enough money. So banks prefer those account holders or depositors who have more deposit in the bank because it enhances their profitability and all. And they have some credit capital also by this. Sir, DMRC is an entity. DMRC is entity. So the shareholding of center and state is 50-50. State and एक कोई और कंपनी है, एक तो DMRC itself कंपनी, ठीक है ना? और मैं तो पहले इस पर करता था स्टोरी, तो मुझे उसमें ध्यान नहीं था. सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही, और इन्होंने ADB और जापान से कई सारे लोन लिए, बट नाउ दैट्स अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल. लेकिन सर जो शेयर है वो तो स्टेक होल्डर सेंटर स्टेट 50-50% है. डीएमआरसी खुद का क्या है? उसका आपने कंफर्म देख लिया है? नहीं, मेरे नाम एक तो इन्वेस्टेबल कैपिटल में वो शेयर है, ठीक है, और एक कंपनी का जो स्टेक है उसमें उनका अपना शेयर है, सेंट्रल का या स्टेट का. ओके. हाँ. और एक कंपनी और थी शायद BP भारत पेट्रोलियम के कंपनी है जिसका कुछ उसमें स्टेक है कि IGL है ये. एनीवे ये इस मैटर ऑफ चेकआउट आप चेकआउट करिए. लेकिन ये जरूर है कि DMRC जो है सेल्फ डिपेंडेंट इंटाइटी बन चुका है. वो एक PSU और है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसमें BPCL का स्टेक, उसमें BPCL कंपनी का स्टेक. अच्छा एक चीज और है, सारे कंपनियों की सब्सिडियरी कंपनी भी होती है. जैसे ONGC इज ए कंपनी, ये PSU corporation basically, but it has a one subsidiary company also that is called as ONGC Videsh. तो एक आप सहायक कंपनी की लेकर के चलते हो, जैसे NTPC.
सब चीजों में जो है ना, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज आप सुन के भी आपके दिमाग में आए। अब जैसे मेरे टीचर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हिज नेम वाज प्रभुराज सिंह, वो पॉलिटिशियन भी थे, वो बिहार सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जगन्नाथ मिश्रा के चीफ मिनिस्टर, और वो प्रोफेसर भी थे। वो हमको एक पब्लिक इंटरप्राइज में पढ़ाते। तो वो एग्जाम्पल देते थे इसमें पीएसयू के प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, कहते थे कि भोजपुरी में एक कहावत बोलते थे, जितना के बबुआ ना उतना के जुनून ना। मतलब कि जितनी की कंपनी नहीं उससे ज्यादा उसका खर्चा। तो वो ऐसे समझाते थे, तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि इस तरीके की एग्जाम्पल थे। तो ये आप अपना इंटरेस्ट जगाइए इसमें कि जब जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स है ना, वही तो असली इकोनॉमिक्स है। बाकी तो थ्योरी पढ़ करके, चाहे गेम थ्योरी हो या व्हाटएवर, ये हमसे कह रहे थे मोदी की देर आर टोटल 300 थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। ये थ्योरी एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में ही जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आप जाएंगे तो यही सब चीज आपको ज्यादा करना है, ठीक है ना। जब आप जाएंगे या फाइनेंस, बजट फाइनेंसिंग या फिर पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेस के बारे में नॉलेज होगा आपको, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जो है प्रॉपर्टी टैक्स, फिर जो है एक एक कैसे एक्सपेंड टैक्स और एक्सपेंडिचर, फिर जो है इनडायरेक्ट टैक्स में जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सेल टैक्स, फिर उसमें फेडरल स्ट्रक्चर आता है, सेंटर का ये, स्टेट का ये, लोकल गवर्नमेंट बॉडी का ये सब चीजें ना आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब काम आता है। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है, इन सब चीजों को आपको जानना होगा। अब जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो, मैं उर्दू में बता रहा था, इसको सीधा समझिए क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब मान लिया कि आप 100 करोड़ का कोई पूंजी लगाए, ठीक है, 100 से और आपका आउटपुट जो निकला जो है 5 से एनुअल आउटपुट, ये नहीं कि फॉर 10 ईयर या 20 ईयर या फला। तो रेशियो क्या हो गया आपका 20, ये 20 इसका 20 into 1, यानी कि 20 रुपया में आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो रेशियो जो है ज्यादा है, यस सर, 20 रेशियो, यही एग्रीकल्चर की बात कर रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो इज वेरी हाई व्हेन यू एवेल्युएट द प्राइस ऑफ लैंड एंड ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर, आपको लगेगा खर्चे ज्यादा होगा। जैसे माइनिंग, तो माइनिंग का आपको एक प्लॉट मिल गया, मान लीजिए कि 100 करोड़ का है उसकी वैल्यू, ठीक है, माइनिंग जो है, और आपका उसमें खजाना मिल गया, तो पहले साल तो उसको हो सकता है 50 करोड़ का माल मिल गया, फिर धीरे धीरे खत्म होगा तो थोड़ा और बचेगा, दूसरे साल 20 करोड़ का आएगा, फिर चौथे साल 20 करोड़ का आएगा। तो उसमें क्या है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो उसमें कम है, यानी कि जितनी पूंजी है उसके हिसाब से जो इनकम होता है वो काफी ज्यादा है, कैपिटल कम है और उसकी तुलना में आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको जो है ना चीजों को सीखना पड़ेगा इस तरीके से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर रेलवेज के रिगार्डिंग, हाँ, प्राइवेट ट्रेन्स भी तो अब चल रहे हैं। प्राइवेट ट्रेन माने मतलब जो हम जानते हैं उसकी हाउसकीपिंग कर रहे हैं और कुछ मतलब ट्रेन स्पेसिफिक, जैसे तेजस जो है हाँ दैट ट्रेन इज प्राइवेट। स्पेसिफिक प्राइवेटाइज। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मतलब हाउ मच कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप। In India, there is a fashion कि you cannot generate welfare without having the ownership of government culture. So that culture has to be ultimately faced by consumer, taxpayer. आखिरकार अगर गवर्नमेंट कुछ देती है तो वो पैसा कोई अलग से नहीं आता, ऊपर से नहीं मिलता है, इसी पैसे को उधर झोंक देती है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू कीप इन माइंड द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर, द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सस्टेनेबिलिटी को ना ध्यान में रखकर के सब्सिडी लगा लगा करके उसको नर्चर किया जाता है और अल्टीमेटली एक नई चीज उसको डेवलप। तो
कंपटीशन इसलिए जरूरी है कि आज अगर TRAI नहीं होता तो आज हम दुनिया का सबसे सस्ता टेलीफोन और इंटरनेट जो हम लोग अवेल कर रहे हैं ये संभव नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के DNA में होता है प्रॉफिट खूब लेना। और आज वोडाफोन को भारत सरकार बेल आउट कर रही है, उसको इंसेंटिव दे रही है, 80,000 करोड़ का नुकसान है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका शेयर खरीद लिया क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यू है। अब प्राइवेट प्लेयर है और इतना बड़ा मार्केट है टेलीकॉम और इंटरनेट, लेकिन कंपटीशन हैज नॉट अलाउड देम टू अर्न वेरी अनसर्प्लस प्रॉफिट एंड इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो सेम वे रेलवे में वी नीड प्राइवेट सेक्टर बट विद सम पॉलिसी फ्रेमवर्क, with some regulatory authority that government has not done in the railway। मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे में, आप प्रीमियम ट्रेन की टिकट लीजिए, क्या प्राइवेट प्लेयर इतना चार्ज करेगा जितना गवर्नमेंट चार्ज कर रही है प्रीमियम ट्रेन। लेकिन जो पैसेंजर फेयर्स हैं वो ज़्यादा सब्सटेंशियल इसलिए नहीं बढ़ाए जाते हैं कि दैट विल बिकम अ पॉलिटिकल इशू। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन एक टर्म है कि हम इससे नुकसान करेंगे और इससे कुछ ज्यादा फायदा करेंगे और इसका फायदा जो है हम इसमें लगा करके इसको किया करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मतलब कि कुछ हमारा एक ग्रुप प्रॉफिट करेगा और दूसरा जो है कम भी करेगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। वही स्थिति रेलवे में है, क्योंकि पैसेंजर कंपोनेंट और फ्रेट कंपोनेंट दो पार्ट है रेलवे के, एक माल भाड़ा और एक यात्री भाड़ा। तो यात्री भाड़ा रेलवे का 2/3 एक्सपेंडिचर ले लेती है, लेकिन रेलवे की इनकम वो कितनी देती है ओनली 1/3। आप टिकट पर देखिएगा, रेलवे टिकट पर लिखा होता है कि वी आर मैचिंग ओनली 57% ऑफ आवर टोटल कॉस्ट फ्रॉम सेलिंग दिस टिकट और फ्रॉम द दिस टिकट पेमेंट, रेस्ट वी आर मैनेजिंग। वो कहाँ से मैनेज करते हैं? माल भाड़े से। और माल का क्या है कि वो केवल 2/3 रेलवे को इनकम देता है, 1/3 केवल खर्च देता है। तो इस तरीके के सेगमेंट बने हुए हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं प्राइवेट प्लेयर का, सरकार जस्ट चाहती है कि इसका डे टू डे और ये सब मैनेजमेंट करने का काम हमारा नहीं है, प्राइवेट करेगा तो पैसा। लेकिन उसमें क्या पॉलिसी के अभाव में डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है रेलवे अथॉरिटी को और फिर करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है पैसे लेकर के किसी प्राइवेट को दे दिया गया हो, क्योंकि पॉलिसी तो है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और कोई आपको कोई क्वेरीज पर आना चाहिए? आप अपने अरुणाचल प्रदेश में बताइए कैसे केस कैसे चलता है? सर ये वहाँ नहीं रहता था, अच्छा वहाँ नहीं रहता, कहाँ रहता था? बोध गया। पब्लिक सेक्टर को समझना है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से समझिए, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। और जो ये जो आते हैं लोन ली जहाँ से स्थापक वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो देखिए दोनों के वर्क कल्चर में कितना अंतर आ जाता है। टीचर्स आर पेड लेस, स्टूडेंट आर चार्ज हाई एंड वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। तो मेरा अपना थियरी है कि पब्लिक सेक्टर मस्ट लर्न फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर हाउ टू इंजेक्ट कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड eagerness for earning profit, and private sector must learn from the public sector how to create provision for the welfare purpose and how to generate more and more benefit to the society people of that। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का सीख लेंगे तो बड़ा एक बैलेंस इन्वायरमेंट बन जाएगा देश सब तरीके से। आप कुछ पूछिए, व्हाट्स योर गुड नेम? अच्छा वहां से क्या है ना, मुझे आवाज कम सुनाई देता है, साफ सुनाई नहीं देता, या तो आप लोग आगे बैठे, क्या बताया? मनीष? आनंद। आनंद? आनंद। आनंद।
आपका क्या मतलब इसको लेकर के मत है, ये स्विच को लेकर और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के अखबार में या और सब चीजों में क्या आप देखते हैं, क्या आपको लगता है? आप क्या चाहते हैं कि सरकार ज्यादा खर्च करे, प्राइवेट सेक्टर कम करे, आपका क्या मत है? Everything comes with advantage and disadvantage. एडवांटेज इन Everything comes with advantage and disadvantage. गवर्नमेंट को दोनों करना चाहिए. वेरी गुड, वेरी एवरीथिंग है एडवांटेज एंड इट्स ओन डिसएडवांटेज. वेरी गुड, वेरी गुड. इसी तरह यही तो पढ़ाई किया जाता है. Like you said, like government, public sector and private sector कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखना चाहिए. ये सब चलिए अब सब लोग एक एक फाइनल कमेंट दे दीजिए आज के इस लेक्चर को लेकर. आप दीजिए, आप तो काफी एक्टिव रहते हैं. सर अबाउट लेक्चर नहीं, पर आज के टॉपिक पे लेक्चर पे व्हाटएवर कोई एक फाइनल चीज, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग हो या अगर कोई सजेशन हो दैट यू कैन आल्सो एक्सप्रेस. सर इट so far it's good going और मतलब अच्छा है लेक्चर. नहीं सब कुछ इसमें एडिशन देखिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ रिफॉर्म. ठीक है ना? तो उसमें जो भी मतलब कि एडिशन करना है यू कैन सजेस्ट, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम. ये तो कंटिन्यू लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिफॉर्म इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, करेक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये तो चलता ही है. Topic wise outline of like the subtopics and everything, so that we can also search more about that topic ourselves. ठीक है, तो मैं कल करूँ क्या? हर टॉपिक का जो आउटलाइन है मैं कल देके जाता हूँ. तो अभी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ क्या, ठीक है? और मेरे पास एक नेशनल इनकम का वो तैयार है पीपीटी, और वो जो है मैं उससे शेयर कर देता हूँ. तो कल जो अब तक जो ये 7-8 टॉपिक है इसका कल मैं सब नोट डाउन, सब नोट कर आउटलाइन. ठीक है ना? वो मैं तो खुद नोट डाउन किया हुआ सब, मैंने वो सब चीज किया हुआ है. और मैं ये भी है कि सबका पीपीटी भी आपके खाते में दे दूँ. तो कल ही मैं असाइनमेंट ही बता देता हूँ. अभी कितना असाइनमेंट हो, 1 या 2 या 3 या सब चैप्टर, मुझे लगता है ये ज्यादा हो जाएगा सब चैप्टर पे. सर अभी एक से एक हो. हाँ क्योंकि अभी 5 दिन का समय है. हाँ मैं फिर 27 या 28 का होगा. तो हम आपको सर एक या दो भी चलेगा. एक पढ़ना भी है. हाँ. So अगर like midterm or finance में अगर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो you will give with relation to current topics, right? Like current schemes, current everything. History नहीं होगा. किसमें? Indian economy में sir. करंट ही होगा ना? नहीं, आप क्या कर रहे हैं कि No, I'm asking sir, when you are giving questions for a paper, you will give in relation to current, like what is current. fantastic. I am also in favor of this. क्योंकि मेरा आने का मतलब है कि वो करंट से ही जुड़ा है. एकेडमिक लोग के लिए तो एकेडमिक लोग आए नहीं जाएगा, लेकिन मेरा भी एकेडमिक है इकोनॉमिक्स, कम से कम ये सब्जेक्ट तो है ही. मेरा जो एकेडमिक है इकोनॉमिक्स का, एक तो इकोनॉमिक थॉट है, एग्रीकल्चर है, लेबर है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक फाइनेंस है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स भी है. उस पर तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और ग्रोथ एंड प्लानिंग का जो भी सब्जेक्ट है वो भी मुझे लगता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग है. ठीक है ना? तो लेकिन ये है कि इलेक्टिव कुछ ही लोगों का है, तो जो जितना लोगों ने लिया वो सही तक मैं कंफाइन रहूँगा, है ना? अभी उसे टाइम कितना हो रहा है? 4:35 हो रहा है. सर किसी का बुक से पढ़ना जरूरी है. क्या किसी का बुक से He's asking for books, sir. बुक्स. बुक टू फॉलो. तो देखिए ये तो ये क्या बोलते हैं, जो सिलेबस है आपका, सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों को मिला है सिलेबस के नहीं? Yes, sir. सिलेबस के लिए तो रेफरेंस बुक सब लिखा होता है. ठीक है ना? और मैं जो पढ़ा हूँ दत्त एंड सूत्रा, दैट इज स्टिल फॉर यू.
Rudra से I was close to him. He was a very renowned Indian economist. And वो दिल्ली में रहते थे पंजाबी बाग में. ये अनमोल उनका बेटा जो है अनमोल बता रहे थे कि उनका फ्रेंड है. तो रुद्र मेरे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट थे. मैं दिल्ली का एक्सिक्यूटिव मेंबर बना 1999 में. वो मुझे उन्होंने ब्लेसिंग भी दिया था. तो उनका अच्छा किताब है इंडियन इकोनॉमिक. रुद्र एंड सुंदरा, केपीएम सुंदरा मैन रुद्र. तो उसको आप लोग देखिए. और मुझे लगता है कि क्योंकि ये है कि परीक्षा पास करना है, सिलेबस है, वो पढ़ना भी ठीक ही रहेगा, कोई बुरा नहीं रहेगा. लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि पूरा एक तरह से सबका मिक्सचर एक्सपोजर मैं आपको दूँ. इसी वजह से वो जो 3 डाटा है ना वो बिल्कुल लेटेस्ट है, किसी किताब में नहीं मिलेगा. किताब में तो मिलेगा ही नहीं, किताब में तो सब पुराना मिलेगा. दैट्स व्हाई आई सेड. तो ये है कि कल फिर मैं केवल नोट कराऊंगा आउटलाइन. ठीक ठीक है ना, सारे टॉपिक. क्योंकि या तो मैं इस पर लिख दूँ या बोल के पढ़ूँ. ऐसे मुझे लगता है लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल दूँ आप लिख दो क्या इस पर बोर्ड पर लिखने सर में डिक्टेट कर देंगे. बोलने में ज़्यादा अच्छा होगा और आपके हिसाब से मैं पढ़ दूँ. ठीक है ना. ठीक है. और कल ही मैं आप लोग को वो दे दूंगा असाइनमेंट. ठीक है. असाइनमेंट मोटे तौर पे आप लोग जान लीजिए, वो भी मैं बताता हूँ क्या मैंने सोचा है कि यू हैव टू प्रोवाइड नेशनल इकोनॉमी रादर नेशनल इनकम एट ए ग्लांस. उसमें करना क्या है कि सपोज दैट यू हैव ए अवेलेबिलिटी ऑफ 2025-26 डेटा that is comprising of GDP, GNP, per capita income, MNP. net per capita income, इन्फ्लेशन रेट भी हो सकता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकता है, NDP, इनकम फ्रॉम NNP. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, व्हाटएवर. एक जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर. Indicators. ठीक है, राइट. उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर. उसमें क्या होता है, आपकी विकास दर, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, कंजम्पशन पैटर्न वो कितना है, और इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल, टैक्स रेवेन्यू दिया जाता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. और जो पिछला साल है 2024-25 उनका डेटा लेना है. और जस्ट यू हैव टू एनालाइज द कंपैरेटिव स्टेटस ऑफ द बोथ ईयर इन टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. इसमें क्या होगा कि आपको डाटा देखना है 2025 जो हमने आप सेलेक्ट किया हुआ है, पिछला डाटा देखना है, और इन दोनों को मिला करके आपको जो है ना एक रिपोर्ट बनानी है कि इकोनॉमी क्या पोजीशन ले रही है, क्या नहीं ले रही है. उसमें अगर इन्फ्लेशन है वो वाला फैक्टर भी देख सकते हैं, डिप्रिसिएशन है वो वाला फैक्टर भी आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं. फिर उसके अलावा किसी साल एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़िया है, किसी साल कम है. जैसे इस बार वो हुआ था, रेन हुआ था, कई जगह फ्लड भी आया था, तो उससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हुआ. इस बार जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम है, पिछली बार कम है. तो हर सेक्टर को आपको कंपैरेटिव चार्ट कराना है कि इसमें ये कम था, इसमें ये कम था, ये चीज इस चीज के चांसेस ज़्यादा है. और बाकी इस बार जो बजट आएगा ना तो फिर आपके पास काफ़ी होमवर्क पड़ेगा, क्योंकि बजट में आपको मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. और मुझे लगता है आपको फॉलो कर लेंगे. मुझे लगता है जैसे ये फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही. सब लोग फास्टली फॉलो करेंगे और आपकी जनरेशन तो पहले की जनरेशन से ज़्यादा वो तो होती ही होती है. ये तो बायोलॉजिकल रूल है, उस हिसाब से उसमें आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है, इंडियन इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन IIP, उसका भी एक ऑपरेटिव फिगर ले सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल का क्या रेट रहा, उत्पादन का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का क्या रेट रहा, वाटर सप्लाई का क्या रहा, माल ढुलाई कितनी हुई, पैसेंजर किलोमीटर कितने गए,
इस तरीके का कल वो भी मैं शेयर कर दूंगा जो हमने पीपी बनाया है, पीपी की नेशनल इनकम पे। लेकिन आपको अपना ओरिजिनल बना के रखना है। इसमें आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी और ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी जो है वो चीजें उसमें मतलब की झलके। मुझे लगता है आपको करते जो प्रॉब्लम होगा वो कॉन्सेप्ट का ही प्रॉब्लम होगा, बाकी मुझे नहीं लगता है कि और बाकी प्रॉब्लम। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पढ़ाने के क्रम में मेरे से भी कोई गलती चीज ना आए, बड़ा जाहिर है। तो आपको यह भी देखना है कि कोई चीज करेक्ट करना है तो आपको उस समय बोलना है। ये हम लोग के समय भी होगा, हमारे टीचर भी कहते थे कि कोई आपको गलत अगर कुछ आ जाए तो आप उसको रेक्टिफाई करो, उसको क्लियर। ये चीज भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में भले हमको कितना भी एक्सपीरियंस नहीं हो, कुछ नई चीजें हम लोग भी सीखते हैं। और यही सीखने और सिखाने का जो होता है, मतलब कि यही डायनेमिक्स होता है, वो सब चीजों को आधार पर सब चलता है। मेरा एक काम और भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। वो आपका विजन जो है ना वो डेवलप करने को लेकर के है, और आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो मतलब कि जो एक जो किसी चीज को लेकर के प्रिजम्पशन जो है, तो वो मैंने एम्प्लॉयमेंट पर बनाया है। उसका भी मैं उसको पीपीटी फॉर्म में डाल करके मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो वो चीज़ भी मैं आपको वो बताऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ मॉडल ही सबसे सॉलिड मॉडल। अब जैसे आज जो फ्रीबीज की राजनीति चल रही है मुफ्त देने की, ये अल्टीमेटली तबाह कर देगा, खोखला कर देगा। और सबसे बेस्ट तरीका गरीबी दूर करने का हम लोग जो है ना मन में बनाया है वो है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मेरे अपनी किताब में स्लोगन है एबल को रोजगार, जो एबल है काम करने की क्षमता है, और डिसेबल को पैसा, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को फ्री ह्यूमन डेवलपमेंट और क्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, लोग कहते हैं फ्री एजुकेशन, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि देश का 70% एजुकेशनल सेटअप और स्ट्रक्चर comes under private sector. Why not you thinking about that private sector also? इसी तरीके से लोग मुफ्त स्वास्थ्य की बात करते हैं। What will happen of all those players who run the whole health sector under the ownership of private sector? तो इसके लिए इशू क्या आएगा कि देयर मस्ट बी रेगुलेटर लाइक टेलीकॉम, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी एग्जांपल के बारे में आप लोगों का मैं लर्निंग और सोचने की तरीका, सोचने की क्षमता बढ़ाऊँ। एक स्कीम है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, उसमें कार्ड बना कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का। मेरे पास है। आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट पे है? हाँ यस। ओके, हाँ, तो उनके बच्चों को मिलता ही। अब वो हमारी फैमिली को मिलता है, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। हाँ, ग्रैंडफादर को मिलता होगा, ठीक है। इसमें काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स। हाँ, तो सारे गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक बात। हम एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, हमें भी मिलता है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, MP MLA और कुछ सेलेक्टेड लोगों को सरकार देती है। अब इनको मालूम है कि CGHS में आपकी ऑफिस कुछ फ्री अगर देती होगी तो उसका पैसा रिइंबर्स हो जाता है, लेकिन यू आर अलाउड टू गो and take treatment for the private sector also, and if you are holding that CGHS card. और for the CGHS card holder, प्राइवेट वाला 1000 फीस लेने के बजाय 350 रुपीज है ना, 350 रुपीज। तो इट मींस कि यू आर प्रोवाइडिंग consultancy at a concessional rate. So why are you not giving this facility to rest of the people of the country? क्या था इसको दिक्कत है? अरे आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम प्रॉफिट ज्यादा बिजनेस, ये आजकल का मंत्रा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, कि हम कम कमाएंगे लेकिन बिजनेस ज्यादा होगा तो ज्यादा कमाएंगे। तो हेल्थ इंडस्ट्री को तो आप ऐसे ही कर देंगे, सारे पब्लिक को वही काट देंगे। इसीलिए इस तरीके का पॉलिसी जो इनोवेशन है, जो मतलब इनोवेटिव पॉलिसी
government should blot out and just try to make balance between public sector and private sector and disseminate more better service to the common people of the country. तो ये जो चीज है ना, इस तरीके के अलग अलग मॉडल हैं जो मॉडल हम लोग को अपनाना चाहिए। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें और भी कई सारा रोल है। तो ये सारे ऑफबिट चीजें हमने आपसे डिस्कस किया, विच ऑल आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है। और प्योर एकेडमिक्स का आदमी ये चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल बाउंड टू बुक होते हैं, बाउंड टू सिलेबस होते हैं। तो वो नंबर लाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आउटपुट डेवलप करने के लिए इस तरीके का डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन that is necessary for the student of economics. या पॉलिटिक्स के हो या इकोनॉमिक्स के हो या सोशियोलॉजी, ये तीनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट। अभी मैंने आपके 7-8 या 9 टॉपिक पर डिस्कशन किया, ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। आप समझिए एक टॉपिक का मामला दूसरे टॉपिक से भी जुड़ा है, दूसरे का तीसरे से जुड़ा है, तीसरे का चौथे से जुड़ा है, चौथे का पांचवें से जुड़ा है। आप देख लीजिए, सोच कर देख लीजिए। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब है उसमें वेजेज एंड सैलरी भी है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा, है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है आपके डेवलपमेंट का प्रमोटर है, एक्सेलरेटर है, मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है, तो वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर है तो वह एक बड़ा पहिया है देश की इकोनॉमी को चलाने का और ग्रोथ को बढ़ाने का। तो स्टूडेंट्स, these are the things which you have to take into account and try to nurture and try to expand the horizon of your thinking pertaining to economics area। और आप देखेंगे कि आपके डे टू डे में इकोनॉमिक्स है। अब जैसे आप यहाँ पर रहते हैं तो आपका एक बजट होगा, उसी में खाना खाना है, उसी में फीस देना है, उसी में किताबें लेनी है, मोबाइल का शुल्क देना है, अपना और भी सब चीज़ देखना है, फिर आपको टाइम का भी मैनेजमेंट करना है, उसकी भी इकोनॉमिक्स है। तो यही, और इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि इसको इकोनॉमिकल बनाए, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, कॉस्ट कॉन्शसनेस बनाए कि हम। और शुरुआती इनिशियल स्टेज में यही पढ़ा भी जाता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, कि पहली रोटी खाता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइड, दूसरी में कम, तीसरी में कम। वैसे ही पैसे का भी है, वो जो मार्जिनल और कैपिटल टर्म सब आया है इसी वजह से आया है। तो वैसे ही मैनेजमेंट जब हम किसी ऑफिस का या फैमिली का या गवर्नमेंट का करते हैं तो वो भी रिजॉल्व थिंग्स आर, मतलब कि क्लब्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल दिस मैटर्स। ठीक है, मैं बस आज का खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर हियरिंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।